Hello everyone. Okay, today we will discuss factor endowment theory. It is known as Heckscher-Ohlin theorem also. It is known as modern international trade also. So today we will discuss this theory. Actually, this concept about factor endowment, this is firstly, it is given by Professor Elie Heckscher in 1919. After that, by his pupil Bertil Ohlin, this theory is given in 1933, Inter-regional and international trade. This theory was published in this book. Okay, so today we will discuss this theory. This theory also known as Elie Heckscher and Bertil Ohlin theorem by two economists. Okay, so Elie Heckscher, who first propounded the idea in 1919 that trade results from differences in factor endowments in different countries. इसके पहले की जो थियरीज थी वो बता रही थी कि द बेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंस इन कॉस्ट एडवांटेज इन द कंट्रीज, कि अलग अलग देश में अलग अलग चीजों में उनको कॉस्ट एडवांटेज होता है और यही ट्रेड का बेस है. बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड डिफरेंस इन कॉस्ट एडवांटेज इन डिफरेंट कंट्रीज, इसका रीजन क्या है ये अब तक किसी ने बताया नहीं था. सो दिस कॉन्सेप्ट, दिस रीजन इज एक्सप्लेन्ड बाय एली Heckscher. Okay. After this, this theory is systematically explained by his pupil Elie Heckscher. Bertil Ohlin in 1933. Okay. So the factor endowment theory, that means Heckscher-Ohlin theory and modern theory of international trade, is a modern extension of classical approach and attempts to explain the pattern of comparative advantage. तो जो हमने क्लासिकल थियरी एडम स्मिथ की पढ़ी या जो कॉम्परेटिव एडवांटेज थियरी पढ़ी है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है. ओके, एक्चुअली थियरी कहती क्या है? एक्चुअली थियरी यहाँ से शुरुआत, अब तक जो थियरी थी उसमें था कि लेबर इज ओनली वन फैक्टर, बट यहाँ पर दो फैक्टर हैं. देयर आर टू फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल. सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, some countries are abundant by capital and some countries are abundant by labor. So capital endowment means abundance of the factors, labor and capital. So some countries are capital abundant country, some countries are labor abundant country. So capital abundant country should specialize in capital intensive goods and export to labor abundant country, and labor abundant country should specialize in labor intensive goods and export to capital abundant country. क्योंकि उनके यहाँ लेबर ज्यादा है तो लेबर चीप होगा, तो अगर लेबर को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करते हैं तो उनकी कॉस्ट कम आती है. और लेबर कंट्री के यहाँ कैपिटल स्केर्स है तो वो डियर होगा, महंगा होगा, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, तो इसकी बजाय वो इसका इंपोर्ट करेंगे. सो दिस इज द थियरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट थियरी. व्हाट इज फैक्टर एंडोमेंट थियरी? दैट मीन्स factor endowment is abundance of the factor in the country. So according to this theory, some countries are abundant by labor, some countries are abundant by factor, sorry, by capital. That means there are two factors. Okay, so capital abundant country should specialize in capital intensive commodities, and labor abundant country should specialize in labor intensive commodity. So assumptions, what are the assumptions? Again, like Adam Smith and Ricardo, here also Heckscher-Ohlin has taken two countries model to explain this theory. Two countries, and they are producing two commodities, and the here major difference, two factor of production. Two factor of production, labor and capital. Two factors are available in fixed amount in each of the two countries. Okay, दोनों देशों में fixed amount में available है, labor भी और capital भी. And they are fully mobile between industries within each country. वो एक कंट्री में एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, मोबाइल हैं, कैपिटल और लेबर दोनों, बट इमोबाइल बिटवीन कंट्रीज, लेकिन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते. टू कंट्रीज आर लाइक टू इन एवरी रिस्पेक्ट, वो बिल्कुल एक जैसे हैं इन सभी मैनर में, एक्सेप्ट फॉर देयर एंडाउमेंट्स ऑफ टू फैक्टर्स. एंडाउमेंट जो फैक्टर का अबेंडेंस है, या कौन रिच है कौन पुअर है,
फैक्टर के रिलेटेड, इसके अलावा वो हर चीज में सेम है। फॉर ईच ऑफ द टू गुड रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल, दोनों ही गुड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी उनके यहाँ अवेलेबल है। Another assumption is also that everyone has the same taste. Both countries peoples have same taste. Then again, a nation will export. तब क्या करेंगे वो? A nation, that means a country will export things that use a lot of its relatively abundant and cheap factor. वो उन्हीं चीज का एक्सपोर्ट करेंगे जिससे रिलेटेड फैक्टर उनके यहाँ ज्यादा है और जो सस्ता है. A nation will import things that use a lot of its relatively scarce and expensive factor. जिस वो उन चीजों का एक्सपोर्ट करेगा, एक कंट्री उन चीजों का एक्सपोर्ट करेगा जिसमें स्केयर, दैट मीन्स जो लिमिटेड उसके यहाँ फैक्टर्स हैं वो यूज हुआ है और महंगे हैं, तो वो उसका क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि उसका अगर प्रोड्यूस करता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है. ओके, टू शो फैक्टर अबंडेंस इन द कंट्रीज. कौन सा फैक्टर किस कंट्री में ज्यादा है, इसको उन्होंने दिखाने के लिए दो क्राइटेरिया यूज किया, फिजिकल क्राइटेरिया एंड प्राइस क्राइटेरिया. सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइस क्राइटेरिया. उन्होंने दोनों ही क्राइटेरिया को समझने के लिए K/L ratio, that means capital labor ratio use किया है. Okay, so according to price criterion, a country having capital relatively cheap and labor relatively dear is regarded as relatively capital abundant country. जिस देश में कैपिटल चीप है और लेबर महंगा है उसको हम क्या कहेंगे? कैपिटल अबंडेंट कंट्री, irrespective of its ratio of total quantities of capital to labor in comparison with other country. दूसरी कंट्री में क्या होगा? अलग होगा कुछ. इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में भी एक चीज देख सकते हैं. यहाँ पर हमने लिया है प्राइसेस, के की प्राइस, एल की प्राइस इन ए कंट्री, के की प्राइस, एल की प्राइस इन बी कंट्री. सो इफ prices of K and prices of L in A is less than prices of K by prices of L in B country. If it is less than, that means इसका मतलब क्या होगा? ये कंट्री, A country will be capital abundance country. क्यों भाई? क्योंकि इसके यहाँ K ज्यादा होगा तो K की प्राइसेस कम होंगी. L अगर कम है दैट मीन्स L की प्राइसेस ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होता है तो ये पूरी वैल्यू क्या आती है? कम आती है. तो ये कंट्री क्या होगा आपका? कैपिटल अबंडेंट कंट्री. सो कंट्री ए इज रिलेटिवली कैपिटल अबंडेंट. क्यों होगा भाई? क्योंकि ये K/L रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ K और L की, ये इन A इज लेस देन prices of K by prices of L in B country, which is less than, that means A country is capital abundant country. Here P stands for factor price, L और K की प्राइस, K for capital, L for labor. A and B are two countries. Now physical criteria हम लेते हैं. फिजिकल क्राइटेरिया में हम उनकी प्राइस नहीं लेते हैं, फिजिकल यूनिट्स लेते हैं. यहाँ प्राइस नहीं, उनकी फिजिकल यूनिट्स है. तो अब अगर मान लो के ज्यादा है तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, एल कम है तो एल यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कम होगा. इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. Viewing the physical criteria strictly implying relatively factor endowments in physical quantities. यहाँ पर हम physical quantity में capital और labor को देखते हैं. A country is relatively capital abundant only if it possesses a greater proportion of capital to labor as compared to the other country. ओके, सो अगर किसी दूसरे देश की अपेक्षा इसके यहाँ K/L ए कंट्री में ज्यादा है, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स तो ये वैल्यू इसके कंपेयर में ज्यादा आ जाएगी. तो अगर K/L रेशियो इन ए कंट्री इज ग्रेटर देन K/L रेशियो इन बी कंट्री, देन वी कैन से दैट ए कंट्री इज कैपिटल अबंडेंस कंट्री एंड बी कंट्री इज लेबर अबंडेंस country. So country A is relatively capital abundant whether or not the ratio of prices of capital to labor is lower than a country B. यहाँ पर हम प्राइस क्राइटेरिया नहीं देखते हैं. ओके, so this is next Olin theory. अब ये theory को conclude क्या करती है थियरी? The basis of internal trade is the difference in commodity prices in the two countries. ओके, जो इनके कमोडिटी की प्राइसेस में डिफरेंस होता है, ये बेस होता है इंटरनल
इंटरनल ट्रेड का, और ये टू कंट्री के बीच का भी यही बेस होता है। डिफरेंसेस इन कमोडिटी प्राइसेस आर, तो जो कमोडिटी की प्राइसेस में डिफरेंस है वो किस वजह से है, आर ड्यू टू कॉस्ट डिफरेंस, क्योंकि कॉस्ट में अंतर है दोनों की, एक देश की कमोडिटी दूसरे देश की कमोडिटी, कॉस्ट में अंतर आ रहा है। कैसे, विच आर द रिजल्ट ऑफ डिफरेंसेस इन फैक्ट एंडोमेंट्स इन द टू कंट्रीज, उसका कारण क्या है, जो कॉस्ट में डिफरेंस आ रहा है उसका कारण है फैक्टर एंडोमेंट, वो जो फैक्टर एंडोमेंट है उसकी वजह से कॉस्ट भी अलग हो जाती है। A capital rich country specialize in capital intensive goods and export them, जो capital intensive rich country होता है जिसके यहाँ capital ज्यादा है, वो capital intensive commodity में अपने आप को स्पेशलाइज करेगा और उसका एक्सपोर्ट करेगा। वाइस वर्सा क्या होगा, जो लेबर अबंडेंट कंट्री है वो किसमें स्पेशलाइजेशन करेगा, लेबर इंटेंसिव गुड्स में, और उसका एक्सपोर्ट करेगा। So Olin gives the illustration of Australia and England, इसको समझाने के लिए ओलिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, इन द सपोर्ट ऑफ हिज थियरी। ओके, इन वो कहते हैं इन ऑस्ट्रेलिया लैंड इज प्लेंटी, लैंड बहुत ज्यादा है वहां पर, एंड चीप और सस्ती भी है, वाइल लेबर एंड कैपिटल आर स्कैंटी, जबकि लेबर और कैपिटल उनके यहाँ बहुत लिमिटेड में है और डेयर और महंगे भी हैं। सो ऑस्ट्रेलिया स्पेशलाइजेस इन गुड्स, तो ऑस्ट्रेलिया इन चीजों में स्पेशलाइजेशन करता है जैसे कि व्हीट, वूल, मीट, ओके, which are relatively produced cheaper here on account of their specific production function. Okay, so production function according वो थोड़ा सस्ते यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लिटिल यूज ऑफ कैपिटल लगता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंग्लैंड इज कैपिटल रिच बट लेबर पुअर, इंग्लैंड में क्या है, कैपिटल ज्यादा है लेकिन लेबर कम है, तो उसके यहाँ लेबर ज्यादा महंगा हो गया था। गुड्स रिक्वायरिंग प्लेंटी ऑफ कैपिटल, तो जहां पर कैपिटल ज्यादा लगता है विल टेंड टू बी रिलेटिवली चीपर इंग्लैंड, जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है वो इंग्लैंड के लिए सस्ता होने वाला है। ओके, एग्जामाइनिंग द ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, अब हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ट्रेड को देखते हैं किस तरह का होता है। सो इट मे बी ऑब्जर्व्ड, इस ऐसा हम पा सकते हैं दैट ऑस्ट्रेलिया इंपोर्ट्स मैन्युफैक्चर गुड्स और कैपिटल इंटेंसिव गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर्ड या कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी का इंपोर्ट करता है एंड एक्सपोर्ट, और क्या एक्सपोर्ट करता है, व्हीट, मीट और दूसरी चीजें। Thus, Australia import is indirectly an import of scarce factors and her export is indirectly an export of factors in abundant supply. तो इसका क्या मतलब है कि indirectly जो उसके यहाँ factor scarce है उससे related चीजें वो import कर रहा है, और जो उसके यहाँ चीजें ज्यादा हैं, abundant supply है, वो क्या कर रहा है, वो export कर रहा है। So this is the theory of factor nomenclature. Again, we can conclude that according to Heckscher-Ohlin, there are two factors of production, capital and labor. Each country is abundant by capital or labor. Some countries are abundant by capital, some countries are abundant by labor. So capital abundant country should specialize in capital intensive commodity, and labor abundant country should specialize in labor intensive commodity, and they should labor abundant country should export labor intensive commodity, and capital abundance country should export capital intensive commodity. So this is the theory of Heckscher-Ohlin. Okay, in next video we will explain, we understand this theory by a diagram. Okay, thank you everyone. Hope you have liked this.